ॐ राम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नामं वरानने। ॐ आपदां दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामयम्। नमस्कार. Namaskar. In this episode, we will read chapter 14, which has 60 verses. King Dasharatha proceeds with the horse sacrifice, and Rashyashrynga grants him a boon regarding the birth of his 4 sons. आज हम चतुर्दश सर्ग बालकांड का पठन पाठन एवं श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें 60 श्लोक हैं। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में सर्यावाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो भव वर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। The aforementioned horse, having returned on the completion of a 12-month period after its release, the Ashwamedha Yagya, the horse sacrifice, commenced on the northern bank of the river Saryu. ऋष्यशृंगम पुरस्कृत्य कर्म द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोस्य सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। Placing Rashyashrynga at the head as the archpriest or Brahmana, whose function is to supervise the sacrifice, the other 3 priests officiating at a sacrifice, being severally known by the names of Hota, Advaryu, and Udgata, the foremost among the Brahmanas, discharge their functions in the great Ashwamedha sacrifice started by the then exceptionally noble-minded monarch. कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेद पारगाः यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामन्ति शास्त्रतः। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। The priests officiating at the sacrifice, who had all mastered the Vedas, duly performed their respective duties and proceeded according to the scriptural ordinance, abiding by the procedure laid down in the Kalpa Sutras and following the order of sequence given in the Mimamsa Shastra. प्रवज्ञं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः। वर्ग्य अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया तथा उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। Having gone through the rite known by the name of Pravagriya, auxiliary to a horse sacrifice, in which fresh milk is poured into the heated vessel called Mahavira or Garma, or into boiling ghee, as well as through the Ishti, a minor sacrifice called Upasada, according to the scriptural ordinance, the Brahmanas also duly performed every additional rite, even beyond the express injunctions of the Shastras. अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथा विधि
प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः। तदंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, माध्यनंद सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। Offering worship to the gods sought to be propagated through the various rites. All the eminent sages officiating at the sacrifice duly performed, full of delight on the said occasion, the rites commencing from the morning savana, the midday savana, and the third savana, act of pressing out the soma juice. इंद्रश्च विधिवद दत्तो राजा चाभिषुतो नघ माध्यन्दिन्दम च सवनम प्रावर्तत यथा कर्मम। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निर्वर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यन्दन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। The oblation intended for Indra, the Lord of Paradise, was duly offered to him, and the creeper, known by the name of Soma, the king of herbs, that drives away all sins, was crushed and its sap extracted, and the midday savana was set on foot in due order. तृतीय सवनम चैव राज्ञस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवाह। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। Ascertaining the procedure by reference to the Shastras, those jeweled among the Brahmanas further duly conducted the third savana on behalf of this exceptionally noble-minded monarch. आव्याहांच क्रीडे तत्र शक्रा दीन विबुधोत्तमान ऋष्यशृंगादयो मंत्रैः शिक्षाक्षर समन्वितैः। ऋष्यशृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। Through incantations marked with letter sounds, the correct pronunciation and intonation of which was picked up during the period of their study, Rashyashrynga and the others invoked the presence in that sacrificial hall of the foremost of gods, headed by Indra, the ruler of all the gods. गीति भीर मधुरे स्निग्धैर्म मंत्राः हवानैर्य थारहतः होतारो ददुरावाह्य हविर भागान दिवोक्साम। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आवाहन मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। Invoking them by means of charming invocatory mantras, secret texts, sweetened with songs of praise, the hotas, priests whose function is to invoke the gods at a sacrifice, offered oblations to the gods, the denizens of heaven, according to their rank. न चाहुतम भूत तत्र स्खलितम वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वम क्षेम युक्तम ही चक्रिरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। In that sacrifice, no oblation was wrongly offered, nor was any rite omitted through ignorance. For every item was seen accompanied with the uttering of a mantra, and the priests did everything in such a way as to avoid transgressions in the manner of any form of procedures. न तेष्वः सु
श्रांतो व क्षुधितो व न दृश्यते न विद्वान ब्राह्मणः कश्चिन शतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। During those days when the sacrifice was in progress, no priest officiating at the sacrifice was seen exhausted, too tired to carry on his duties, or hungry, or even thirsty. And there was no Brahmana, particularly in that sacrifice, who was not learned and did not have at least 100 attendants or pupils. ब्राह्मणा भुंजते नित्यम नाथ वंतश्च भुंजते तापसा भुंजते चापी श्रमणाश्चैव भुंजते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशम भुंजमानानां न तृप्ति रूप लभ्यते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। The Brahmanas, as well as the members of the other twice-born classes, took their food every day, and so did the members of the servant class, the Shudras, and so on. The ascetics, the Brahmacharis, and the Vanaprasthas also took their meals under the auspices of the sacrifice, and so did the recluses too, as well as the aged and the diseased, and also women and children. The dishes were so delicious that no satiety was observed in them, even though they were fed day and night. दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुर्नैकशः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। Pressed by men at the helm of the affairs in the words, "Let food be given again and again," and also articles of wearing apparel of various kinds, many men in that sacrifice did as they were told, freely gave away food and raiment. अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत् तदा। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। Numerous heaps resembling mountains of rice cooked from day to day in the traditional way was seen on that occasion on the sacrificial grounds. नाना देशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपाने सुविहितास्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। The men, as well as the hosts of women that had arrived from different lands, were fully entertained at that sacrificial performance of the high-souled emperor. अन्नम ही विधि वत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ताः स्म भद्रम ते इति शुश्राव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण, भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। The noble Brahmanas spoke well of the food they ate, as indeed cooked in the proper way and tasteful too. And Dasharatha, the scion of the Raghuvansha, heard them saying, "Oh, we are fully satiated, king. May you be blessed." स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तान्नन्ने
सुमृष्टमणि कुंडलाः, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। Men richly adorned served food to the Brahmanas, while others, decked with earrings made of gold and highly polished stems, waited upon the former in their turn. कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहूनपि प्राहु सुवाग्मिनो धीराः परस्पर जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। During the interval between two savanas, act of pressing out the soma juice on that occasion, intelligent and highly eloquent Brahmanas put forward many reasoned arguments with the intention of getting to know one another better. दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदिताः। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। From day to day in that sacrifice, the aforesaid expert Brahmanas discharged all the functions according to the scriptural ordinance as directed by the elders. ना षडंग विदित्रा सीना व्रतो ना बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावाद कुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि छहों अंगों का ज्ञाता ना हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ना किया हो तथा जो बहुश्रुत ना हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। No Brahmana holding the office of a Sadasya, whose duties are mainly to look on the correction of mistakes, in this sacrificial performance of that monarch King Dasharatha, who was not conversant with the 6 branches of knowledge of the Vedas, which is Shiksha, phonetics, Vyakarana, grammar, Chandas, prosody, Nirukta, etymology, Jyoshtya, astronomy, and Kalpa, or the science, were prescribed the rituals and given rules for ceremonial or sacrificial acts. No one was there who did not observe sacred vows and was not very learned or not skilled in argument. प्राप्ते युपोच्छये तस्मिन् षड्बैलवाः खादिरास्तथा तावन्तो बिल्व सहिताः पर्णिनश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। When the time arrived for erecting the sacrificial pillars, there came to be set up in that sacrifice 6 pillars of bilva wood, 6 pillars of khadira, and on each side of the bilva 1 and 6 more of the palasa pillars were set up. श्लेष मात्र कमयो दिष्टो देवदारु मयस्ततथा द्वावेव तत्र विहितो बाहु व्यस्त परिग्रहो। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या ना 1 है ना 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। 1 pillar of the Sleshmataka is recommended, and so are recommended pillars of Deodar, the Himalayan cedar. 2 only of such pillars of Deodar are recommended in the aforesaid sacrifice, which is the Ashwamedha, and they should stand at a distance of 6 feet from one another. कारिताः सर्व एवैते शास्त्र गैर यज्ञ को वैते शोभार्थम
तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए इन सब में सोना जड़ा गया था। All these had been got ready beforehand under the directions of those well versed in the scriptures and proficient in the sacrificial technique, and had been plated with gold for gracing the sacrifice. एक विंशति यूपास्ते एक विंशत्य रत्नयः वासो भिरेक विंशति भिरेकैकम समलंकृताः। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरित्री 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। Those 21 pillars were 21 spans high and had been duly adorned, covered with as many pieces of cloth which was required on each one of them. विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पीभिः सुकृता दृढ़ाः अष्टास्त्रयः सर्व एव चलक्षण रूप समन्विताः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। Having been beautifully shaped by the carpenters, they were all strong and had been fixed according to the scriptural ordinance. They were all octagonal in shape and had been provided with a very smooth surface. आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। Covered with pieces of cloth and worshipped with flowers and sandalwood paste, they shone bright as the constellations known by the name of the Great Bear, presided over by the 7 rishis in the heavens. इष्टकाश्च यथा न्यायम कारिताश्च प्रमाणतः चित्तोग्निर्ब्राह्मणस्तत्र कुशलः शिल्प कर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। The bricks had been made according to the measurements given in the scriptures, and with them was the sacrificial altar constructed by the priest skilled in this architecture pertaining to such sacrifices. सचित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजः गरुडो रुक्म पक्षो वे त्रिगुणोष्टा दशात्मकः। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्ण में दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्य अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। The sacrificial fire meant for that altar and going to be worshipped by Dasharatha was placed with due ceremony by expert Brahmanas. According to the shape of the altar in which the fire was placed, the fire resembled in the shape of the figure of Garuda, with his wings and tail distended and looking downwards, facing the east with wings of gold, due to the sides of the pit having been constructed with bricks of gold. Being treble in size as compared to ordinary altars, it consisted of 18 sacrificial pits, an ordinary altar comprising of 6 only. नियुक्तास्तत्र पश्वस्तत् दुद्दिश्य दैवतम
उर्गाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रम प्रचोदिताः। वहां पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। Beasts, serpents, and birds too, ordained by scriptural injunctions, had been tied down to those pillars for being offered to particular gods. शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलच राष्ट्र ये ऋषिभिः सर्व में वैतन्य युक्तम शास्त्र तस्ततदा। शामित्र कर्म में यज्ञीय, अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। The sacrificial horse, as well as the aquatic creatures, turtles and etc., that had been bought there for the act of sacrifice, all those were bound that very moment by the seers and priests according to the scriptural ordinance. पशूनां त्रिशतम तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तम तत्र राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। 300 beasts were tied down at that time to the aforesaid pillars. The foremost of the best horses belonging to King Dasharatha too, they say, were tied down there. कौसल्या तम हयम तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणेर विषशारयणम त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौसल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। Consecrating the said horse on all sides by sprinkling it with water and so on, there Kaushalya, as also the other queens, touched it with great joy with their 3 swords. पतित्रणा तदा सार्धम सुस्थितेन चेतसा अवसद रजनी में काम कौसल्या धर्म काम्यया। तदंतर कौसल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। That with intent to acquire religious merit, Kaushalya then spent one night with the said horse, swift as Garuda, the king of the winged creatures, with a perfectly composed mind. होता ध्वर युस्त थोदगाता हस्तेन संयोजयन् महिष्या परिवृत्त्यर्थम वावाताम पराम तथा। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महिषी कौसल्या, वैश्य जातीय स्त्री वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिव्रती, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श किया। The 4 archpriests officiating at the sacrifice, the Hota, the Advaryu, and the Udgata, and the Brahmins then at the close of the night caused the king's second wife, ordinarily belonging to the Vaishya class and bearing the generic name of Vavata, along with his first wife, bearing the class name of Mahishi, and as well as the third wife, known by the class name of Parvriti, to be brought into contact with this horse. पतत्रिणस्तस्य वपा मुद्रित्य नियतेन्द्रियः ऋत्विवक् परम संपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शस्त्रोक्त रीति से पकाया। Taking out the edible part of the tuber known by the name of Ashwakanda or Ashwagandha, the plant Physis flexosa, the chief priest, who had duly controlled his senses and possessed great skill in performing sacrificial rites, cooked it according to the scriptural ordinance. धूम गंधम वपायास्तु जिग्रति स्म नराधिपाः यथा कालम यथा न्यायम निर्णोदन पापमात्मनः। तत्पश्चात
उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। The king smelt at the proper time, according to the scriptural ordinance, the odor of the steam of that tuber, the ashwagandha, driving away thereby his sin, standing in the way of his getting a son. हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रासयन्ति विधिवत स्मस्ताः षोडश द्विजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। All the 16 Brahmana priests taking part in the sacrificial performances in a body cast into the sacrificial fire with due ceremony all the articles worth consigning into the fire as parts of that horse sacrifice. पलक्षासु यज्ञनाम मन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है, वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है। अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। Whereas the offering to be made at the other sacrifices is placed on the boughs of the palakash tree, that to be made at the Ashwamedha sacrifice is required to be placed on the mats made of cane. त्रयो अश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणे चतुष्टोम महस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्तयं द्वितीयं संख्यातं तमतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्र दर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है, उसे चतुष्टोम यानी अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उकथ्य नाम दिया गया है और तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है, उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। A horse sacrifice has been declared in the Kalpa Sutras as well as in the Brahmanas as having its 3 days allotted to Savana, the rite of pressing out the soma juice. Kautustuma, Jyotistuma has been mentioned to be the name of the Savanas to be performed on the first of the 3 days. ज्योतिष्ठो मायुषी चैव मतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजीत विश्व जिच्चैवमाप तो यार्मो महाक्रतुः। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार अतिराग्र यज्ञ, 5वां अभिजीत, 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं, जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। The second day Savana has been named as Uktaya, while that had to be performed on the 3rd day to be designated as Atritra. Many other secondary sacrifices too are enjoined with the Sastrika point of view, were performed by King Dasharatha on that occasion towards the conclusion of the horse sacrifice. Jyotisuma and Ayustuma, 2 rounds of Atiratra, Abhijit and Vishwajit, and 2 rounds of Aptoryama. These were the 8 great sacrifices performed on that said occasion. प्राचीन होत्रे ददौ राजा दिशम स्वकुल वर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीम तु ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर ओता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का राज्य सौंप दिया, अध्यर्वु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणेशा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूविते पुरा।
इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। At the conclusion of the sacrifice, the emperor, the promoter of his race, gave away as dakshina or sacrificial fee the eastern quarter of the globe to the Hota, the western to the Advaryu, and the southern quarter to the Brahma, and the northern to the Udgata. Such is the dakshina prescribed for the great sacrifice of Ashwamedha, which was performed for the first time by Brahma, the self-born creator of this universe. कृतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्भः ऋत्विगभ्यो ही ददौ राजाधराम ताम कुलवर्धनः। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। Having concluded the great sacrifice according to the scriptural ordinance, the emperor, a jewel among men and the promoter of his race, actually gave away to the priests who officiated at the sacrifice the earth itself, as specified above on that said occasion. एवं दत्वा प्रहृष्टो भूश्रीमान मान विक्ष्वा कुंदनः घृति ऋत्विज ब्रुवन् सर्वे राजान गत किल्बिषम। यो दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। Having made the aforesaid gifts, the glorious Dasharatha, a scion of Ikshvaku clan, felt extremely delighted. All the priests, however, spoke as follows to this sinless king. भवानेव मही कृतस्नामेको रक्षितुर्महिति न भूमिया कार्यमस्माकं नहीं शक्ताः स्म पालने। महाराज, अकेले आप ही इन संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। You alone are able to protect the entire globe. We have nothing to do with the earth, nor will we be able to maintain it. रतः स्वाध्याय करणे वयं नित्यं हि भूमिशपः निष्क्रियं किंचि देवे प्रयच्छतु भवानिति। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता। आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दें। As we are constantly devoted to the prosecution of the study of the Vedas, O protector of the earth, giving you anything whatsoever by consecration. मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो युद्धा समुद्यतम तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्य न प्रयोजनम। नृपश्रेष्ठ मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो, वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। Bestow on us some superb gem, gold or cows or whatever may be available, O jewel among the protectors of men. We have no use for this earth. एव मुक्तो नरपतिर ब्राह्मणैर वेद पारगैः गवाम शत सहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। ऋत्विजस्तु तथा सर्वे प्रददुः सहिता वसु ऋष्यशृंगाय मुनिये वसिष्ठाय च धीमते। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर एक सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागम द्विजोत्तमाः सुप्रीत मनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता वृषम। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस ध्यान का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण
मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ततः प्रसर्प केभ्यस्तु हिरण्यम सुस्माहितः जाम्बूनदम कोटि संख्यम ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय द्विजायात हस्ताभरण मुत्तमम कस्मैचिद याचमानाय ददाओ राघव नंदन। धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उस रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवद द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणामं करोत तेषां हर्ष व्याकुलेत इंद्रियः। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो उठी थीं। तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणे समुदायता उदारस नरवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तथा प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमुत्तमं पापापहं स्वर्णनयं दुस्तरं पार्थिवेशभः। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो ब्रवीत दृश्य श्रृंगम राजा दशरथ स्तदा कुलस्य वर्धनस्यम तत्तु क्रतुर्महर्षि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसका संपादन आपको करना चाहिए। Thus told by the Brahmanas, who were all masters of the Vedas, the king, who acknowledged none other as his own ruler, bestowed on them 10 lakhs of cows, 100 million gold coins, and 4 times as many silver coins. Thereupon, all the priests combined handed over the entire wealth to sage Rashyashrynga and the wise Vashishta for equitable distribution. Having had the whole wealth equitably divided through Rashyashrynga and Vashishta, all those eminent Brahmanas now felt much delighted at heart and said, "We are highly pleased, fully composed in mind." The king then gave away on that very occasion 10 million golden coins to the Brahmanas that had come from outside to witness the sacrifice. When no money was left on hand for distribution, Dasharatha, the delight of the Raghuvansha, promptly gave away one of his excellent bangles to a certain unknown priest, a Brahman, who asked for a gift. The Brahmanas, having been duly propitiated, the king, who was so fond of the Brahmanas and whose senses were all excited through joy, offered salutations to them. On that magnanimous soul, a hero among men, lying prostrate on the ground, benedictions of various kinds went forth with pronouncing in suitable words by the Brahmanas upon the king. The king now felt delighted at heart to have succeeded in completing the sacrifice, unsurpassed by any other, capable of dispelling the sins that stood in the way of his getting a male child and transporting him to heaven, and was hard to carry through even for the foremost of kings. King Dasharatha then said to Rashyashrynga on that very occasion, "Be blessed, O sage of auspicious vows, to do further that which may tend to promote my race. I shall do accordingly," replied the jewel among Brahmanas to the king, "so that 4 sons will be born to you and will propagate your race." तथेति च स राजान मुवाच द्विज सत्तमः भविष्यन्ति सुता राजंश्च च राजंश चत्वारस्ते कुलोद्वः। तब ऋष्यशृंग
तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। स तस्य वाक्यम मधुरम निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षम परमं महात्मा तम ऋष्यशृंगम पुनर्पियुवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। That high-souled and pious-disposed emperor experienced great joy to hear this sweet assurance, and bowing low to him, reiterated his prayers to the celebrated Rashyashrynga. श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुर्दशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग संपूर्ण हुआ। Thus ends Canto 14 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Rama Rama Rameti रमे रामं Manorame सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार।